ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨਗੋ ਜਾਂ PPSC ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ BPO ਇਹਦੇ ਨਾਲ PSCB ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। बेहतरीन शॉर्टकट, बेहतरीन तरीके और पेपर ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। और ऐदा ही तुसी अगर चाहते हो कि हर क्लासा तुसी टाइम टू टाइम लो, जिमें कि साड़ी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, 11 बजे साड़ी पंजाबी की क्लास चल रही है, 3 बजे साड़ी स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया की क्लास चल रही है, स्पैशल द फैकल्टी ऑफ PPSC एंड इस तो अलावा साड़ी शाम को 6 बजे कंप्यूटर क्लास है, शाम को 8 बजे एग्रीकल्चर या साड़ी मैंसुरेशन की क्लास डिजाइन होंदी है। बाकी ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ WhatsApp ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਚਿੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂ ਬੋਥ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜ, ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ठीक है सर, शुरू करते हैं अज का क्लास का सैशन। तो इस तो पहला मैं दसना चाहना कि जे तुसी साडा कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो PPSC पटवारी दे लई बेहतरीन और जिहदे च तुहानूं अलग अलग कोई भी स्टडी मटीरियल नहीं परचेज करना पएगा भी ई बुक्स कित्थों लईए, टैस्ट सीरीज कित्थों लईए, कंटेंट कित्थों लईए, ताकि सानू कोई इहो जिहा ऑर्गेनाइजेशन मिले जिहड़ा डेली बेस ते सानू क्लासां दे नाल कंटेंट देवे। तां तुसीं इस लई साडी ऑफिशियल नंबर ते कॉल करके जानकारी लै सकदे हो। प्ले स्टोर 'चों तुसीं गिल्ज मैंटोर दी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उत्थे भी देख सकदे हो। साडी ऑफिशियल जिहड़ियां वैबसाइट्स ने giljmentortest.com ते जाके भी तुसीं फ्री च बथेरा सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकदे हो ते टैस्ट सीरीज तुसीं लै सकदे हो। चलिए कैलेंडर की है, कैलेंडर ते अज आपां गलबात करांगे। बेहतरीन कंसैप्ट होएगा कैलेंडर दा। सब तो पहला कैलेंडर ਦੀਆਂ 4-5 ट्रिकां दस्सण तो पहला मैं बेसिक कंसैप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ठीक है, कुछ बेसिक ਜਿਹਾ कंसैप्ट समझ लो। ठीक है, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ईयर ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ईयर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ईयर ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ईयर ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਲੀਪ ईयर। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਪ ईयर ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 366 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਈਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਬਰਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 28 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਟੋਟਲ 29 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 29 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 28 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 29 ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, चलिए हुण पहला मैं तुहानूं दस दिना कि इहदी बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक जानकारी दोनों की किद्दां पहचान करांगे। देखो सिंपल ईयर च की हुंदा है, फैबररी मंथ की गल करते हैं मेरे दोस्तों 28 डेज। ठीक है, एंड वी नो कि 29 डेज कदों आउंदे आ।
ठीक है। हुण आपां इन्हां नूं किस तरीके नाल पहचानांगे? पहचानण दा सब तो बेसिक फंडा ये हुंदा है कि जदों भी साडे कोले कोई ईयर हुंदा है, ठीक है, ईयर हुंदा है ना, ईयर नूं आपां की करना है, 4 नाल डिवाइड कर देना है। अगर ये पूर्ण तौर ते 4 नाल डिविजिबल है तां अगर साडा पूरा 4 नाल डिविजिबल है, इट मीनस वो साल साडा की होएगा, जनरली आपां कहांगे लीप ईयर होएगा। जिवें कि इस वक्त साडे कोले की चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक, की चल रहा है 2020 है, 2020 नूं 4 नाल डिवाइड कीता तां पूरा हो गया, तो ये साडे कोले किहड़ा होएगा? लीप ईयर होएगा। अगर साडे कोले जनरली डिविजिबल नहीं हो रहा, इट मीनस है कि साडा किहड़ा होएगा? नॉन लीप ईयर होएगा। बस यही चीज़ तुसीं याद रखनी है, एग्जाम दे विच तुहानूं सब तो ज़्यादा यह चीज़ बेनीफिट देने वाली है, ठीक है। हुण मैं छोटियां गल्लां तुहानूं तुहाडे नाल सांझियां करांगा, प्लीज़ जिन्हां नूं याद रखना है। वापस तो मैं दसांगा कि लीप ईयर हुंदा आ पूर्ण तौर ते 4 नाल भाग जाएगा। जिवें कि आपां पिछों मैं पिछोकड़ तो गल करां, जिवें 1980, 84, 88, 92, 96, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ये साल किहड़े होणगे? लीप ईयर। और लीप ईयर दे विच हुंदे आ टोटल 29 दिन हुंदे ने, ये चीज़ याद रख लिओ फरवरी मंथ दे। और यही एक दिन का फासला 365 दिनां दे विच वध जांदा है, और जिस करके 366 दिन हो जाते हैं। क्लीयर है ना? हुण चलते हैं आप नैक्सट पॉइंट ते, जिहड़ा अपना पॉइंट नंबर आ जाता 2। पॉइंट नंबर 2 दे विच आ जाता कि टोटल जे आपां गल करिए कि टोटल लगभग 52 वीक्स हुंदे ने। किन्ने हुंदे ने? 52 वीक्स हुंदे ने। कादे विच? एक साल दे विच। किन्ने हुंदे ने? एक साल दे विच 52 वीक्स हुंदे ने। और याद रखना है कि एक वीक दे विच तकरीबन एक वीक दे विच अपने कोले मैक्सीमम किन्ने हुंदे ने? 7 दिन हुंदे ने। किन्ने हुंदे ने? 7 दिन हुंदे ने। तो तुसी लगभग 52 × 7 करोगे तो तुहाडे मैक्सीमम जो है, मैक्सीमम लीप ईयर तो 7 दिनां नूं कंसीडर करेगा ना, ठीक है। तो उही दिन तुहाडे अगे चले जांदे हैं। हुण 2 चीज़ां याद रखना है कि 52 दिन, 52 दे पूरे सप्ते प्लस ये उपर किन्ने हो जाते हैं? 2। जरा मैं इसनूं इधर लिख देना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा, ठीक है। यानी मैं इत्थे अगर ब्रैकेट बना के लिख देवां तो तुसीं समझ जाओगे, प्लस मैं लिख दांगा 2 डेज उपर है, ठीक है। 2 डेज जनरली और या 3 डेज आपां लीप ईयर दे विच कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम कदे नहीं पूछेगा, एग्जाम वाला पूछेगा तुहानूं कि दसो कि सधारण साल दे विच किन्ने हफ्ते हुंदे ने, पहली गल है। दूजी गल है कि सधारण साल दे विच किन्ने दिन हुंदे ने, लीप ईयर की हुंदा आ, लीप ईयर कदों आउंदा आ। ये चीज़ां थोड़ियां स्ट्रोंग हुंदियां जा रही, हौली हौली तुसीं जिवें जिवें सैशन नूं गांह देखोगे मैं तुहानूं प्रॉपरली डेप्थ दे विच सारियां चीज़ां दस्सांगा, ठीक है जी। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, ये कुछ कोले आ जांदा है कि एक सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है तुसीं कि सधारण साल दे विच जिहड़ा अपने कोले सिंपल ईयर होएगा, किहड़ा होएगा? सिंपल ईयर होएगा ना। सिंपल ईयर दे विच अगर आप अगले साल जाना, जिवें कि गल करा मैं, मेरे को सपोज 2019 है, सिंपल है, ठीक है। 2019 तो खैर 2019 तो अगे लीप ईयर आ जाता है, मैं इसनूं 2021 मान लेना है। 2021 तो बाद मैं 2022 भी है, सिंपल ईयर होगा। अगर मैं सपोज 2022 जाना है, ठीक है, तो मैनू लगभग 1 डेज अगे जाना पएगा, 1 डेज की जाना पएगा मैनू, ठीक है। 1 डेज मैं की चला जाऊंगा, नैक्सट डेट ते चला जावांगा, नैक्सट डेट ते चला जावांगा। बस ये चीज़ तुसीं समझ लो किद्दां है, इहदा मेरा काम है समझाउणा, ठीक है। अगर तुसीं पिछले साल जाना है तो पिछले साल तुसीं 1 दिन पिछे चले जाओगे, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। जिवें कि मैं इत्थे समझा देना, पॉइंट नंबर ए साडे कोले पहला हो गया और ए साडे कोले पॉइंट नंबर दूजा हो गया, जो मैं तुहानूं हुण समझाउण जा रहा, ठीक है। if you want to go back, लाइक जे आपां गल करते हैं कि सपोज सानू पेपर वाला कह दिंदा कि 2023 दे विच 1 जनवरी 2023 नूं शुक्रवार है, दसो 1 जनवरी 2022 नूं की वार सीगा? तां असां की करना है, सिंपल साल तो सिंपल साल पिछे जाण वास्ते 1 दिन पिछे चले जाना, ठीक है। तो मैं मतलब इत्थे तुहानूं दस्सांगा, ये 1 साल तो मतलब लाइक तुसीं कह सकदे हो 1 ईयर टू 1 ईयर बैक, ठीक है। तो तुसीं की कर देना, 1 डे लैस कर देना है, 1 डे पहले की कर देना, क्लियर माइनस कर देना, ठीक है जी। ये समझ गो। मैं तुहानूं क्वेश्चन सीरीज करावांगा, बस मैं तुहानूं इस करके समझा रहा, तुसीं स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ, नोट डाउन करते चलो, या तुसीं इसनूं तुहाडा नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ां मेरियां आ, मैं तुहानूं टास्क करावांगा। एग्जाम्पल चल आपां करदे हां। हुण तुहानूं पेपर वाला कहंदा है कि अगर इफ 15 सितंबर सन 2002 नूं ऑन, ठीक है, इफ 15 सितंबर इत्थे मैं लिख देना है कि संडे है, आ लो जी संडे लिखता मैं।
देन ठीक है विच डे कम ऑन 15 सितंबर, या मैं इत्थे कह सकता विच डे केम ऑन 15 सितंबर 2003। ठीक है जी, सिंपल जी गल है। अगर 15 सितंबर सन 2002 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ कि 15 सितंबर 2003 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ। डेटा देखो स्टार्ट ਦੀਆਂ सेम है, सिर्फ एक साल 2002 है, 2003 है। सब तो पहली नज़र अपनी तिखी नज़र लजाओ कि साल कोई लीप ईयर तो नहीं है। हुण अपने तो एक साल गां आ, इत्थे ऐतवार दस्सिया जा रहा है, तो तुहाडा आंसर की आएगा दसो सारे जने, दसो की आंसर आएगा। बिल्कुल क्लीयर की आएगा, तुहाडा आंसर मंडे आ जाएगा। की आ जाएगा? मंडे मतलब सोमवार आ जाएगा। कंसैप्ट समझ आया? कम समझ आया ना। अगर तुसीं सधारण साल दे विच एक साल अगे जाना आ तो तुसीं एक दिन वधा दोगे, 2 साल अगां जाना आ तो 2 दिन वधा दोगे। जनरली क्वेश्चन है, क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी सज्जन नूं। समझ आ गया जी। पहला सवाल इस तरीके का होएगा। अगर मैं यही सवाल तुहानूं थोड़ा जिहा रिवर्स करके पूछना कि इफ ऑन 11 सितंबर 2002, ठीक है, मैं इत्थे लिखा कि मेरे को की है मंडे है, ठीक है सर, एंड देन विच डे कम्स या विच डे केम ऑन 11 सितंबर 2001। अगर 11 सितंबर सन 2002 ਨੂੰ सोमवार सी तो दसो 11 सितंबर सन 2001 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ दिन होएगा। जनरली गल सब तो पहला आपां की चेक करना है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इन्हां नूं अगर 4 नाल भाग करांगे, देखो 4 नाल भाग करन दा शॉर्टकट मैथड हुंदा है कि किसी भी नंबर दे अखीरली 2 अंक चक्को, किसी भी नंबर दे अखीरली 2 अंक चक्को और दोनों अंकां नूं तुसीं की करना, 4 नाल भाग करना है। जिवें 02 नूं 2 नाल भाग कीता नहीं, बल्कि 02 नूं 4 नाल भाग करांगे तो जाएगा नहीं, 01 ते 4 नाल भाग करांगे जाएगा नहीं। इट मीन से लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो आपां की करना है, 1 साल पिछे है तो 1 साल पिछे चले जावांगे। इत्थे की हो जाएगा तुहाडे कोले, ये सोमवार है ना, तो सोमवार दे एक दिन पिछे की हो जाएगा तुहाडे कोले, आ जाएगा संडे। ये तुहाडा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ? मैनूं दसो सारे जने समझ आया कि नहीं आया। अगर मैं तुहानूं पुछां कि दसो भी 20 अक्टूबर सन 2021 ਨੂੰ 20 अक्टूबर सन 2021 ਨੂੰ अगर फ्राइडे है, अगर की है फ्राइडे है, तो दसो तुसी 20 अक्टूबर सन 2022 ਨੂੰ की दिन होएगा। ठीक है जी, तो एक दिन अगे है तो आप की कह देंगे गुरु जी सैटरडे आएगा। कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया? कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी। इस तो बाद आ जाओ, अगर मैं कहां कि 25 जुलाई सन 2022 ਨੂੰ सन 2022 ਨੂੰ अगर साडे कोले की है ट्यूसडे है, ठीक है, तो तुसीं दसना आ कि 25 जुलाई सन 2021 ਨੂੰ की वार आएगा, तो 1 साल पिछे है तो तुसीं किहदे ते आ जाओगे, मंडे ते आ जाओगे। कंसैप्ट समझ आया ना? जनरली टास्क है। चलिए बिल्कुल क्लीयर है। हुण आ जाओ तुसीं नैक्सट नंबर ते। नैक्सट तुहाडे कोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जांदा है ऑन द लीप ईयर। ठीक है जी, तुसीं कहता जी लीप ईयर ते, हुण लीप ईयर ते किद्दां होएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। बस तुसी समझना आ, काम बाकी मेरा आ। लीप ईयर ते तुसी की करना है, 2 डेज जाना आ। फॉर नैक्सट अगर तुसी जाना आ तो तुसी की करना है, 2 दिन अगे जाना आ। ठीक है, एंड फॉर कमिंग बैक, अगर तुसी कमिंग बैक लिए आ रहे हो तो तुसी 2 डेज की कर देना, 2 डेज बैक आ जाना है। बस इन्नी चीज़ बस तुसी याद रखना है, होर कुछ भी नहीं करना। क्यों करना है जरा समझो। पहले दा एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल की कहता है सवाल का एग्जाम्पल ये कहता है कि मेरे कोले जनरली अगर मैं थोनों सवाल दसा, जनरली सवाल जे मैं तुहानूं दसा तो मैं इत्थे लिखांगा 15 सितंबर सन 2000 ਨੂੰ मेरे कोले की है, मेरे कोले ट्यूसडे है, या मेरे को नहीं, मैं कैलेंडर ते कह देना ट्यूसडे है। देखो 15 सितंबर 2000 ਨੂੰ बुधवार है या मंगलवार है या शुक्रवार है, शनिवार, कुछ भी दे दे, सानू मतलब नहीं है। ये डेट की वैल्यू नहीं बनेगी जिन्नी की वैल्यू नैक्सट डेट की बनेगी। हुण आ गई साडे कोले 15 सितंबर सन 2001 ਨੂੰ की वार होएगा। 1 साल अगे चले गए। सवाल समझो जरा। हुण देखो तुसी कहोगे जी 2000 तो लीप ईयर है,
ਲੀਪ ਈਅਰ है ना, क्योंकि 2000 ਤੇ 4 ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਨਵੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਸੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2001 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ 2001 ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੈਨਸਡੇ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1999 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੈਕ ਜਾਓਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ, ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਤਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੌ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਕ ਆਉਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਕਰੋਗੇ। ठीक है जी, अगस्त तो बाद तुसी की करना है, जुलाई करोगे, जुलाई तो बाद तुसी की करोगे, मई करोगे, मई तो पहला तुहाडे कोले की आ जाना, अप्रैल आ जाना, अप्रैल तो बाद तुहाडे कोले मार्च आ जाना, और मार्च तो बाद तुहाडे कोले फेब आ जाना, फेब तो बाद तुहाडे कोले जनवरी। और यह वाला फेब आएगा ना, ये 29 दिनों का होएगा 2002 दे विच। क्लीयर है ना? तो एक दिन है ये कंसीडर होना ही होना है, एक दिन ये वखरा चढ़ जाना है साडी प्लेट ते। और बाकी जे आप पिछे जावांगे या अगे आवांगे तो वही एक दिन तो बनना ही है अगले और पिछले साल दे विच। ठीक है जी, समझ आ गया गल? ये तरीका है, ये टैक्टिक है, मैथड्स हैं, प्लीज इन्हू जरूर समझना है। अदरवाइज डेफिनेटली यू पीपल आर डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन। कंप्लीट गल मेरी समझ आई? चलो हुण आ जाओ इसे चीज़ां नू होर बेहतर तरीके नाल एक्सप्लेन करांगे। एक्सप्लेन करन दी गल है जिथों तक जनरली आप सवाल नू होर बेहतर समझ लेने। मैं लिखांगा 15 अप्रैल सन 2004 नू की है तुहाडे कोले संडे है। ठीक है सर, मैं तुहानू सवाल पूछ रहा कि दसो 15 अप्रैल सन 2003 नू की वार होएगा। बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, लाइव सैशन है सारे लिए। सैशन शेयर करना है, मैक्सीमम ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, और तुसी इत्थे बहुत ईजिली सारे कंटेंट की तैयारी कर सकते हो। तुहाडा कोई भी पेपर है, पटवारी पेपर है, पीपीएससी प्रिंसीपल हैडमास्टर बीपीओ पेपर है, प्रीवियस ईयर 100% साडा रिजल्ट सीगा। और इस बार फिर असी बोल के नहीं कहते, बल्कि असी तुहाडे मूहों सुनना चाहुंदे हैं कि रिजल्ट रहा है कि नहीं रहा। ठीक है, कंसैप्ट और कंटेंट बिल्कुल क्लीयर करवाए जा रहे हैं, राइट है, थ्रू द एग्जामिनेशन। ना कि इदा होएगा कि आपां कोई चीज़ एग्जाम सिलेबस तो बाहर दी पढ़ रहे हैं, नहीं, प्रोपरली तरीके नाल। 15 अप्रैल 2004 नू अगर संडे है तो 15 अप्रैल 2003 नू की वार होएगा। हुण मेरी गल ते गौर करियो, ये 4 है, 2004 किहड़ा आ गया, लीप ईयर आ गया। किहड़ा आ गया, लीप ईयर आ गया। हुण तुहानू पता है भी लीप ईयर तो पिछे आ रहे हैं, तो लीप ईयर दे विच जिहड़ा वापस आवांगे आपां, चक्री वापस घुमेगी। ठीक है जी, मैं तुहानू अगर प्रैक्टिकली तौर पर लिख के दिखा दा, क्योंकि कईयां दे हो सकदा रीजनिंग थोड़ा जिहा स्लो घट समझ आवे। देखो अगर 15 अप्रैल मैं अप्रैल नू ए लिखांगा 2004 दे विच, ठीक है, फिर इत्थे मेरे कोले हो गया 15 अप्रैल तो पहला की हुंदा, मेरे कोले मार्च 2004 है। गुरु जी मेरे कोले 15 मार्च तो पहला हुंदा फैब, मेरे कोले 2004 है। ये 2004 है तो 28 की बजाय फरवरी के 29 दिन होणगे कि नहीं होणगे? ये वापस जा रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं किधर, 2003 दे विच। तो 1 साल का तो अंतर जनरली पैना ही पैना है, तो 1 साल ये पै जाना है। 2 साल दो मतलब लाइक आप 2 डेज बैक जावांगे, इफ साडे कोले संडे है तो आप कह सकते हैं कि साडे कोले की आएगा, नेक्स्ट साडे कोले फ्राइडे आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पायो कि नहीं समझ पायो, मैनू कमेंट करके दसो कि बिल्कुल समझ आया। और अगर यही क्वेश्चन तुहानू इत्थे इंज हुंदा कि 15 अप्रैल दसो जी 2005 नू की वार हुंदा, तो तुसी 15 अप्रैल तो फिर गां निकल जाना सी। आपां अप्रैल तो बाद किहड़ी च आ जाना सीगा, मई दे विच आ जाना सीगा, फिर आपां जून चल जाना सीगा, फिर आपां जुलाई चल जाना सीगा, फिर आपां अगस्त चल जाना सीगा। अपने कोल फैब कंसीडर नहीं होना सीगा, फैब हुंदा सन 2005 दा। 2005 साडा लीप ईयर नहीं है, इस करके फरवरी दा 28 दिन ही रहणगे, और जनरली साडे कोल 1 दिन ही वधेगा। तदां साडे कोले संडे तो बाद की डिगदा, अपने कोले आके मंडे हुंदा। कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबनू समझ आ गया। चलिए हुण आपां चलदे हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। मैं तुहानू पुछांगा कुछ होर महत्वपूर्ण चीज़ां पुछांगा, उस तो बाद आपां क्वेश्चनिंग सीरीज शुरू करांगे। चलो जी, हुण दूजे तरीके के सवाल आ जाते हैं। जनरली बोलचाल की भाषा दे विच कई सवाल आउंदे ने कि अगर साडे कोल सपोज
मैं कह देना भी किसी बंदे दी 15 ਸਤੰਬਰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 15 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਥ ਡੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਜੋੜ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ 15 ਸਤੰਬਰ 82, ਫਿਰ 83 1 ਸਾਲ, 84 2 ਸਾਲ। ठीक है जी, इदा ही करांगे ना आप। 84 2 साल, 85 3 साल, 86 87 88 89 90 91 92 93 इदा इदा। या तो ये जोड़ तोड़ कर लो जिवें पिंडां दे विच, खास तौर पर पिंडां दा मतलब ये नहीं गा कि गलत है, पिंडां दा मतलब ये है कि बड़ा मतलब देसी फार्मूला हुंदा, पेंडू तरीका हुंदा जिहड़ा एक्यूरेट हुंदा है, वो कर सकते हैं आप। या फिर आप दूजा मैथमैटिकल ऑपरेशन नाल भी आप आंसर कर सकते हैं। मैथमैटिकल ऑपरेशन की कहता है, सब तो पहला पूछी गई डेट नूं पहला लिखो। देखो ट्रिक की कहती है, ट्रिक ये कहती है पहला पूछी गई डेट नूं लिखो गुरु जी। पहली डेट जनवरी, पहला महीना। ठीक है जी, इत्थे आप लिख देंगे सन 2003। समझ गए गुरु जी, क्लियर है ना। दूजी दिती गई डेट 15, ठीक है, सितंबर। साडे कोले की है, 9वां महीना सितंबर है ना, 9वां महीना। फिर साडे कोले सन 1982। ये अगर समझ गए तो तुसी जिन्ने भी टीचर्स भी देख रहे हैं तो बच्चों को बेहतर तरीके नाल स्कूल दे विच जाके दस सकते हैं। अदरवाइज आपां नूं बच्चों नूं नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तुहानूं ये चीज़ां बार बार इस करके कहांगा कि मैं सब तो पहला कदे भी, बहुत सारे हुंदे आ कि अपने आप नूं सोशल मीडिया ते आके इदां प्रकट करते हैं। मैं 1 साल कैलेंडर याद किया, 2 साल कैलेंडर याद किया, फिर मैं 10 साल कैलेंडर याद किया, अज मैनूं पूरी जिंदगी का कैलेंडर याद है। ठीक है, लेकिन किसी जादू नाल नहीं, टोने नाल नहीं, सिर्फ मैथमैटिकल ऑपरेशन नाल। मेरी गारंटी है, मैं बहुत सारी चीज़ां मैं मेरे यूट्यूब चैनल ते दस भी चुके हैं और तरीके भी दस चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ां कदे भी, हालांकि पूरी जिंदगी का कैलेंडर याद करके बंदा बहुत बड़ी उपाधि हासिल नहीं कर सकता, परंतु हाँ इन्ना जरूर है कि सोशल मीडिया ते आपां वाह वाह हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ां हुंदियां कि तुसीं जिन्ना ज़्यादा इकट्ठा करोगे चीज़ां नूं, तुहाडे अंदर उन्ने ज़्यादा आइडियाज़, फंडे, लॉजिक तरीके अपने आप बनते रहंदे ने। हुण देखो आपां की करना है, इन्हां दोनों का अगर आप सवाल दे विच एक चीज़ समझनी है, तुसीं किद्दां कर सकते हो। देखो जी, ये चीज़ समझ लियो प्लीज़, इसनूं मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं समझे तो सानूं कुछ भी समझ नहीं आएगा। 2003 दे विचों डायरैक्ट 1982 नहीं कढ़ा सकते। लॉजिकल तरीके नाल 82 दे विच 18 जोड़ांगे तो अपने कोले कितना बनेगा, 2000 ते 2002 तक, क्योंकि 1 जनवरी तक कंसीडर हो ही रही है ना, तो टोटल किन्ने बन गए ने इत्थे। जनरली आपां गल करांगे टोटल 20 साल बन गए। किन्ने बन गए, 20 साल बन गए। ठीक है जी, दूसरी गल है इत्थे 1 चों 9 नहीं कढ़ने, तकरीबन ये अपने कोले मंथ किहड़ा आ, आपां अपने कोले पुछया सी सितंबर तो लेके जनवरी का डिफरेंस सीगा, जनवरी का डिफरेंस सीगा ना, तो दोनों दे विच अगर आपां डिफरेंस ऑफ ईयर्स देखांगे, आपां सवाल समझो जरा। हुण तुसीं 1 दे विचों 15 नहीं माइनस कर सकते, 1 चों 15 नहीं माइनस करते, क्योंकि पहली डेट है। पहली डेट नूं एज ए कंसीडर, देखो आपां जनरली बोलचाल की भाषा दे विच आपां मंथ नूं कंसीडर करते हैं 30 डेज। कादे च कंसीडर करते हैं, 30 डेज दे विच कंसीडर करते हैं। देखो दो तरीके है, या तो तुसीं 15 दे विचों 1 माइनस कर दो, 14 बच गए, और 14-30 दिन अगर तुसीं कंसीडर करते हो तो 30 और 14 का डिफरेंस कितना होएगा, 16 दिन होएगा। कितना होएगा, 16 दिन होएगा। ठीक है जी, 16 दिन होएगा। प्रैक्टिकली तौर पर तुसीं इदां समझ सकते हो। दूसरा तरीका की है कि तुसीं ये नहीं गा कि जनरली तुसीं की करोगे कि पिछे तुहाडे कोले किन्ने मंथ बचणगे, मंथ फाइंड आउट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंक है। हुण देखो तुहाडे कोले जनवरी है और दूजा तुहाडे कोले की पूछा, एक अपने कोले जरा की पूछा गया सीगा, इन्हां ने सितंबर गिवन है एंड जनवरी साडे तो पूछा गया। सितंबर और जनवरी की गल करते हैं तो दोनों के विचाले टोटल किन्ने मंथ होणगे, जनरली अपने कोले प्रैक्टिकली तौर पर 3 मंथ होणगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखियो 3 मंथ। तो आप इत्थे कह सकते, हुण नोट करो जरा ये चीज़ नूं किद्दां समझना है कि दिन दे विचों आपां दिन नूं घटाउने आ। अगर उत्ते छोटी संख्या हैगी है, उत्ते जिवें छोटी संख्या उत्ते 1 सीगा क्योंकि 1 जनवरी सी, तां आपां बोलचाल दी भाषा दे विच महीने नूं 30 दिनां दे विच कंसीडर करते हैं। इसे प्रकार आपां महीने नूं घटाउने हैं, इसे प्रकार आपां महीने नूं घटाउने हैं। और जनरली अगर नहीं घटदा तो 1 साल नूं आपां 12 महीनों च कंसीडर करते हैं। 1 साल नूं काहदे च करते हैं, 12 महीनों च, क्योंकि मैनूं पता 1 दे विचों अगर आपां 9 कढांगे, ट्रिक नोट कर लो भी 1 चों 9 कदे नहीं निकलते, 1 चों 9 नहीं निकलते, तो कभी भी तुसीं नहीं कह सकते कि -8 आ रहे हैं, -8 तो कोई महीना ही नहीं गा। तो आपां की करते हैं,
अगर मेरे कोलों इथों नहीं घट रहा है तो मैं इसनूं की करांगा 12 मंथ दे विच कंसीडर करांगा। 12 दे विचों 9 कड्डे, मेरे कोल 3 महीने आए कि नहीं आए, हर सवाल च इदां करना है। मैं करा के तुहानूं दिखावांगा, तद ही तुसीं आंसर इहदा कर सकोगे, अदरवाइज तुसीं आंसर इहदा नहीं कर सकोगे। ठीक है जी, ये चीज़ नोट करियो। उस तो बाद आपां की करना है एट द एंड, और फिर आपां साल दे विच साल नूं घटा देवांगे। ये अपने बोलचाल दे साल नहीं। ठीक है, 16 दिन 3 महीने 20 दिन अपने 20 साल इहदा की बन जाएगा, नेक्स्ट दी टोटल उम्र बन गई है। इसे तरीके नाल आपां काम करते हैं। पीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन लिया सीगा, पीपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट किया, क्वेश्चन पूछा सीगा कि एक बच्चे दी 12 नहीं बल्कि 17, ठीक है जी 17 अप्रैल, ठीक है जी 17 अप्रैल सन 1976 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਾਰਚ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਾਰਚ, ਦੱਸੋ ਜੀ 2003 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਬਣੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਸਕਿੰਗ ਡੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 है। मंथ अपने तो इत्थे मार्च है, तो मार्च नूं आपां की कंसीडर करते हैं, मार्च नूं आपां तीजा महीना कंसीडर करते हैं, सन 2003 है। ठीक है जी। नैक्सट अपने को 17 की दी है, अप्रैल दी, अप्रैल नूं आपां कंसीडर करते हैं 04, और अपनी गल हो रही है सन 1976 की। टोटल अपनी एज कितनी हो जाएगी ये आप इत्थे लिखना है। सब तो पहले आप की करना है, डेट वाइज क्लीयर करना है। डेट नूं क्लीयर करना है तो बोलचाल की भाषा दे विच तुहानूं मैं की दस्सिया सी भी 10 दे विचों 7 नहीं निकलते, तदां आपां उपर वाले नूं कंसीडर करके ही मन सकते हैं। ठीक है, या तुसीं इदां करो भी 17 दे विचों 10 कड्डो, तुहाडे कोले किन्ने बच गए ने 7, और 7 नूं 30 दा डिफरेंस करांगे तो 30 दिन बन गए। या तुसीं इदां करो 23 दिन बन गए तुहाडे कोले, या तुसीं इदां करो भी दो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा तुहाडे कोले 7 आ रहा ना, भी टोटल डिफरेंस 7 आ रहा माइनस का, तो 30 दिनों चों कंसीडर करो इन्हां नूं। इदां नहीं कि तुसीं 30 दिनों दे विच 17 दिन डिफरेंस लै रहे हो तो तुसीं कह दो जी 13 दिन है, हाँ 13 दिन प्लस 10 उपरले जोड़ दो, फिर इदां कर लो तुसीं। बई अगर तुसीं छड्डो, तुसीं उपरला छड्डो अप्रैल वाले 17 दिन तो तुहाडे कोले मार्च वाले हो गए। हुण तुसीं जनरली बोलो, देखो जनरली 17 दिन अप्रैल वाले, अप्रैल पहला आउंदा कि मार्च पहला आउंदा है? मार्च पहला आउंदा है। मार्च की गल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जनरली आपां बोलचाल दे विच मार्च की गल करांगे। 10 मार्च तो लैके 17 अप्रैल का अंतर टोटल 23 दिन इत्थे बन जाणगे अपने कोले, 23 दिन इत्थे बन जाणगे। ते अगर आपां 3 नैक्सट अपने कोले 3rd महीना, और अपने कोले नैक्सट अपने कोले 4th महीना है। एक चीज़ नोट करो, एक चीज़ नोट कर लो सारे जने कि अगर आपां बोलचाल की भाषा तो बल्कि नहीं, नोट ये करना है कि जो इत्थे दस रहे मंथ वाइज, जनरली जदों भी सानू मंथ बारे पता करना है, ना तो दिता होया मंथ कंसीडर करांगे, ना तो दिता होया मंथ कंसीडर करांगे, ते ना ही आपां नू आस्किंग मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये मैं जी फॉर गिवन लिख दांगा, ए फॉर आस्किंग लिख दांगा। ये दोनों मंथ नू तुसी की करना है, कंसीडर नहीं करना। जिवें प्रीवियसली क्वेश्चन च मैं समझा देना, मैनू कमेंट आया जी प्लीज़ थोड़ा क्लीयर करो। देखो आपां की किया 2000 आपां नू बल्कि 82 का केस दे रखा, और आपां 2003 दे विच जाना, मतलब आपां गांह जाना है। तो तुसी सितंबर दिता, सितंबर छड्ड दो, सितंबर तो बाद की होंदा अक्टूबर, अक्टूबर तो बाद की होंदा नवंबर, नवंबर तो बाद दिसंबर, जनवरी का पूछा सी, जनवरी कंसीडर नहीं करना, 3 महीने बच गए। सेम थिंग इत्थे गुरु जी करो, तुहानू दिता होया इत्थे इन्हां ने की दे रखा, ये वाला सानू की दे रखा, अप्रैल दे रखा, अप्रैल कंसीडर ना करो, छड्ड दो। अप्रैल तो बाद की होंदा तुहाडे कोले मई आउंदा ना, मई तो लैके और उपर सानू मार्च पूछा तो फरवरी तक कंसीडर करो। तुहाडे कोले तकरीबन किन्ने आ जाणगे, 10 महीने आ जाणगे। किन्ने आ जाणगे? 10 महीने। सेम थिंग इत्थे करनी है तुसीं, सेम थिंग इत्थे की करनी है, मैं तुहानू की दस्सिया सीगा कि जिवें तुहानू दिनां दा दस्सिया सी कि 30 दिन कंसीडर करने, 31 कुत्तियां दा रोल नहीं पाउणा विच, इदां ही 76 ते 24 दा 76 च 24 जोड़े 2000, ते टोटल अगे 2003 कंसीडर नहीं करना, बल्कि 2 साल कंसीडर होणगे, तो 24 ते 2 किन्ने आ जाणगे, 26 साल। क्यों आ गए बई इसे? क्योंकि वही दिन साडे मंथ च ऐड हो गए, और वही दिन साडे अगे डे च ऐड हो गए, सो दैट इस परसन की एज 23 दिन, ठीक है 10 महीने ते 26 साल निकलेगी। आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा। आपां 1-2 सवाल होर करदे हैं, धड़ा तुसीं आंसर कड्डो। हाँ जी, हुण एक सवाल दे रहा तुहानू मैं, 10 जनवरी 2008 नू, ठीक है एक बंदे दा बर्थ होया है। बाकी आपां करांगे पार्ट 2 दे विच क्वेश्चन। तो तुसी दसो मैनू, नैक्सट मैं तुहानू पुछदा 15 मार्च 2012 नू इहदी एज टोटल किन्ने साल दी होएगी? 2012
ਜਾਂ ਮੈਂ 2018 2012 ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਬਸ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆ। ठीक है, आप सब तो पहला की करना है 15 लिखना है, मार्च मतलब तीजा महीना आ, सन 2012 लिख लेना आप। ठीक है, उस तो बाद अपन गिवन की है 10 जनवरी, उस तो बाद आप की करना है सन 2008 है। बस फटाफट क्विकली मैनू दसो, और ये सवाल तुसी कमेंट बॉक्स च मैनू दसना है, नहीं आएगा फिर क्योंकि कल मैं थोड़ा जिहा मैं ट्रिक्स तुहानूं होर दसांगा, इस करके आप बाकी का सैशन करेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।